Conference 2023. We have gathered here to discuss work-life balance through holistic health by Navjeevan in association with Arogya Bharati and CCRYN with the support of NSISM Ministry of Ayush. We have a rich tradition of Atiti Devo Bhava, and here too we are going to follow that rich culture of ours. I would like to take privilege to welcome all of you in this 2 days workshop. What is our mission? A healthy life, healthy body, peaceful mind, and of course, a awakened soul. Medicine is a form of healing that considers the whole person's body, mind, spirit, and emotions in the quest for optimal health and wellness, to promote a drug-free holistic approach to healthcare so that people can be restored to their optimal health. The idea of healing may feel big and perhaps out of reach, but it's what our body was designed to do. Today we are here to discuss how to live 100 years and retain youth, health and beauty. The future of healthcare wellness in the 8 dimensions, bypass surgery and angioplasty is not for patients but for profit. Change your breakfast, change your life. Mind, meditation, fasting without starving, happy healing with herbs and much more to discuss here. Ayushman Bharat Yas, an organization dedicated for 2 decades for integrated health, all the doctors during the corona pandemic time have shown their divine form of saving lives of millions of Indians with their dedication and services. This year, as you all know, we are celebrating 150th anniversary of the spiritual icon who was also called as Vishwa Guru. I am talking about Sri Aurobindo, once a renowned revolutionary who later became a spiritual master. Life of Sri Aurobindo is a reflection of Ek Bharat Shreshtha Bharat, as he was born in Bengal and know many languages including Gujarati, Bengali, Marathi, Hindi and Sanskrit. We are dedicating this event to the spiritual master Sri Aurobindo. Also 2023 is declared as the International Year of Millets, whereas India is the largest producer of millets in the world. To increase the awareness of the crops in the terms of its health benefit, 2023 has been declared as the International Year of Millets by the United Nations. So here, before we go and call our dignitaries on the dais, I would like to call Dr. Umesh Sharma, who is also a psychologist, to say an address to you all. Thank you so much, everyone. Thank you, madam. I will introduce to you as a psychologist. And psychologists are considered to be confused persons. So I will be confusing you further. Sir, Almira, I say good morning to all of you. And in Hindi it is known as Suprabhatam. इसका अर्थ क्या होता है? सुप्रभातम में सु का मतलब क्या, प्र का मतलब क्या, हा का मतलब क्या और त और ध का मतलब क्या? कोई आइडिया? देखिए, मीन्स ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही सुंदर होने जा रहा है। दूसरा, प्रसन्नतापूर्ण, यू विल बी very happy during the program. Next, जो लोग इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं वो भाग्यशाली हैं। और ता मीन्स एनी आइडिया? तनाव रहित, तनाव रहित। और भा का मतलब मंगलमय। सो इट इज ए सुप्रभातम। दोस्तों, आप लोगों ने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया होगा, है ना? क्या किया है? आपस में शेयर कीजिए। जो आपके बगल में बैठे हुए उनसे शेयर कीजिए कि आज आपने नाश्ता क्या किया है, कैसे किया है, किसने खिलाया।
करना मैं चाहूंगा कि आप अपने बगल में शेयर कीजिए कि आपका सबसे फेवरेट नाश्ता क्या है। चाय, ब्रेड, रोटी, दाल, सब्जी, आपस में शेयर कीजिए। जो अगल बगल में बैठे उनके साथ शेयर कीजिए कि आपका सबसे फेवरेट नाश्ता क्या है। देखिए, हमारे लिए नाश्ता का मतलब कुछ और है। बी रेडी फॉर द डे, इसका अंग्रेजी में कहते हैं ब्रेकफास्ट। बी रेडी फॉर द डे, रिप्लेनिश योर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। जो भी आपका न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट है, नाश्ता ऐसा होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट, इनर्जाइज योर सेंसेस। नाश्ता ऐसा होना चाहिए कि सारे हाथ, कान, पैर खुल जाए। अवेलेबल फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बाद आप काम अपना स्टार्ट करते हैं, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टू डू टू एंड ऑनर योर नियर एंड डियर, फील ब्लिसफुल एंड नेक्स्ट, एक्सेप्ट द डे एज इट कम्स। Systematize your day engagement and tension-free life. Then it is known as breakfast. तो दोस्तों, अब ये देखिए, ये बताइए कि इस प्रोग्राम में आने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि गुड, ऐसा है, ठीक ठाक है, बढ़िया है, ठीक है दोस्तों। अर्जुन का मैं बैक 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 पीछे दिया। फॉर्मेट नहीं है ना कार्ड एक सेकंड कर रहा हूँ, तब तक ये दूसरा वाला फॉर्मल मार कर नीचे। कौन से कार्ड ए में हो रहा है ना, कौन से वाले में काम करना, एक कार्ड निकाल के देख लेना। हो गया साहब, ए में हो रहा है ना, तो बी वाले को फॉर्मल मार दो। अभी हो जाएगा तो अच्छा दिन। हाँ मेन्यू में जो हेलो इस प्रोग्राम का कॉपी आपके पास आ जाएगा, आपके मेल पर ये सारी चीज आ जाएगी, तो उसे नोट करने की आवश्यकता है। दोस्तों, अब ये बताइए कि इस प्रोग्राम में आने के बाद ऐसा लग रहा है, मूड आपका कैसा है? अच्छा, फॉर्मेट आ गया। अगर इसी से पूछे हाउ आर यू, आई एम फाइन, है ना, लेकिन अंदर से क्या है? डिप्रेस्ड, सैड, हर्ट, कंफ्यूज्ड, लोनली, अनलव्ड, जज्ड, मिसअंडरस्टूड, और ऊपर से क्या बोलते हैं? बीच में रोक के करना पड़ेगा, ये क्या है? हो जाएगा ना। इनका चेहरा देखिए आज करेंगे, सारे के सारे टेंशन में, है ना। अगला इलेक्शन पास में, एक ही और से ये सारे के सारे टेंशन में। और कुछ लोग टायर्ड एंड टेंस ऑल द टाइम, जिंदगी भर टेंशन में रहते हैं। दोस्तों, एक आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए, एक टेंशन में है ना, है टेंशन में। दोस्तों, एक आपसे रिक्वेस्ट है, अपना अपना हाथ ऐसे गर्दन पर रखे, तो अपना अपना हाथ ऐसे गर्दन पर रखे, और अगर गर्दन गर्म है और हाथ ठंडा है तो अपने हाथ उठाइए। अगल बगल में देख लीजिए साहब, जितने लोगों ने हाथ उठाया, जिन लोगों ने हाथ उठाया है इस हॉल में बैठे हुए हैं, लेकिन टेंशन में। आप हमसे पूछ सकते हैं क्यों? जिंदगी का कोई दिन याद
बौखलाहट में है, टेंशन में है, तो एक एरिया गर्म होगा या ठंडा होगा? और जब हर समय गर्म हो तो डिप्रेशन। हमारे गांव में एक कहावत है, पैर गरम पेट नरम माथा ठंडा, डॉक्टर आए तो मारो डंडा। या इसको ऐसे भी कहते हैं, मस्तिष्क में शीतलता, मुख पर प्रसन्नता, वाणी में माधुर्यता और दिल में उत्साह, तो आदमी टेंशन फ्री। हमारा एक बुक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू एंशिएंट विजडम एंड मॉडर्न साइंस। मैंने सारे थ्योरी वेद से लिया है। आपको ख्याल होगा कि जो लोग यहाँ बैठे हैं, एक जमाने में हम लोग बुद्धिस्ट थे, सारे के सारे बुद्धिस्ट थे। साउथ से जब शंकराचार्य नॉर्थ में आए और वहां पर एक साक्षात्कार हुआ, उनका नाम था मंडन मिश्र। मंडन मिश्र बुद्धिस्ट हुआ कि इन दोनों में साक्षात हो, जिसका जो जीत जाए उसका धर्म मान लेंगे। अब हुआ कि जीता कौन हारा कौन, इसका फैसला कौन देगा? तो हुआ कि भारती जो मंडन मिश्र की वाइफ थी वो फैसला देगी। अब मंडन मिश्र की वाइफ भारती को लगा कि मेरे हस्बैंड 56 साल के हैं और शंकराचार्य 18 साल का है, हमारे हस्बैंड तो जीतेंगे। लेकिन जो पब्लिक यहाँ बैठी हुई है वो सोचेगी कि एक जज थी अपने हस्बैंड को जिताती। वो बागीचे में गई, फूल तोड़कर ले आई और 2 गार्लेट उसने बना दी। एक माला शंकराचार्य ने, एक माला शंकराचार्य को पहना दी और एक माला मंडन मिश्र को, और अनाउंस की जिसका माला पहले सूख जाए वो हारा हुआ माना जाएगा। क्यों? कि वो बौखलाहट में आ गए, टेंशन में आ गए, उसका उत्तर उन्हें आ नहीं रहा है, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, तो ये एरिया गर्म हो जाएगा। और अंत में शंकराचार्य का फूल और खिलने लगा और मंडन मिश्र का फूल मुरझा गया। और हम लोगों ने हिंदू धर्म द्वारा, दोस्तों एक छोटा सा और अगल बगल में बैठे हुए उनसे हाथ मिलाइए, एक हाथ इधर एक हाथ इधर, और होल्ड कीजिए, होल्ड इट सर, होल्ड इट, हाथ मिला के उनको पकड़े रहिए, हाथ मिला के पकड़े रहिए। ये बताइए, आज के बाद मालूम हो जाएगा कि मैं टेंशन में हूं कि ये टेंशन है। जिसका हाथ ठंडा इसे देखिए, घूम रहा है या स्थिर है? एक घूम रहा है या स्थिर है? एक घूम रहा है या स्थिर है? इतने को एक दिख रहा है कि एक घूम रहा है। हाथ उठाइए, जैसा काफी लोग लग रहा है घूम रहा है। एक घूम रहा है या स्थिर है? हाथ उठाइए, इनको लगता है घूम रहा है। काफी लोगों ने हाथ उठाया था। जिनको ये तीनों पिक्चर घूमता हुआ नजर आ रहा है, ये बताइए 3 चीज होता है, स्ट्रेस, टेंशन एंड पैनिक। इन तीनों में क्या अंतर है? स्ट्रेस, टेंशन एंड पैनिक, इन तीनों में क्या अंतर है? डिग्री का फर्क है ना? ये दोनों होंगे तो पैनिक होगा, ये दोनों होगा तो पैनिक होगा। एक हल्का सा जोक है साहब, स्ट्रेस इज व्हेन टेंशन इज व्हेन and panic is when डिग्री का अंतर है ना। सीने में जलन, दिल में तूफान, आंखों में तूफान है। इस शहर में हर शख्स परेशान। दोस्तों, आप ये देखिए, जिंदगी में या तो हम सड़ते हैं या बढ़ते हैं। ये बताइए, वर्ल्ड में हेल्थीएस्ट कंट्री कौन सा है? भूटान।
Iceland, yes. स्पेन, उसके बाद इटली। अब ये बताइए हिंदुस्तान का कौन सा नंबर है? 132। दोस्तों ये देखिए, आज से 1.5 साल पहले दिल्ली में सर्वे हुआ था, 73% लोगों को हाई बीपी था, 30% को मालूम ही नहीं था कि हाई बीपी है, 40% को शुगर की बीमारी थी, ये सारे थायराइड थे, ये सारी, और हर जगह ये प्रॉब्लम फैलता जा रहा है। अरे खतरनाक के साथ 25% लोग 70 साल के पहले उनका डेथ हो जाता है। 60 लाख लोग दिल, फेफड़ों, स्ट्रोक, कैंसर की बीमारी से मरते हैं। 50% लोग दौरे से, हृदय का दौरे से 50 साल से कम उम्र में मरते होंगे। आपने अभी सुना होगा कि पायलट अभी हवाई जहाज में उड़ाने ही वाला था कि 5 मिनट पहले उसे हार्ट अटैक हुआ, नहीं आया। अगर उसे हार्ट अटैक हवाई जहाज के अंदर चलाते हुए होता तो 5 मिनट पहले तो क्या होता? भगवान करे इन बीमारियों से डेथ ना हो, और ये संभव है। हमारा उम्र अभी 82 साल का है, हम अभी ये बताइए इस प्रोग्राम में आते के साथ आपको कैसा लग रहा था? कि आप अपनी इच्छा से आए कि जबरदस्ती आपको भेजा गया? जबरदस्ती इतने लोग हैं उनको जबरदस्ती यहाँ भेजा गया है। अब ये देखिए जो पार्टिसिपेंट आप लोग होंगे, ये 5 P में हमने बांटा है। पहला जो है वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, जानेंगे, सुनेंगे। जो दूसरे P होंगे ऊपर से जरा अपने मोबाइल में लगे रहेंगे। तीसरा जो हो, अगर फैकल्टी या लेक्चरर जो भी बोले वो उसका उल्टा बोलना है। और यहाँ पर सब दोस्तों कुछ लोग ऐसा सोच रहे कहां फंस गए थे, प्रिजनर की तरह जेल में आ गए। कुछ लोग होंगे कि ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि प्रोग्राम का सारी चेंज हो जाए। दोस्तों ऐसा भी नहीं होगा कि मैं बोलता रहूं आप सुनते हैं, आपस में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और इस पिक्चर को देखिए, क्या है साहब, जहां एक बोले हम सुने उसे, और जहां सब बोले और कोई न सुने उसे। देखिए कौन सा ऐसा चीज है जो बचपन में आपको दिया गया था, सब कोई उसे यूज करता है। लेकिन क्या है नाम। अगर जो आदमी अननोन है आपके अगल बगल में बैठे, उनसे अपना नाम शेयर कीजिए। लेकिन अगर जानने वाले हैं तो क्या किया जाए? सर एक और रिक्वेस्ट है, कौन कौन लोग हैं जो इस मंथ में पैदा हुए थे, जनवरी में? हाथ उठाइए। जनवरी वाले कौन कौन लोग हैं? जो जनवरी में पैदा होते हैं वो एम्बिशियस और हार्ड वर्किंग होते हैं। आप लोगों में से कौन लोग हैं जो इस मंथ में पैदा किए थे? हाथ उठाइए। जो इस मंथ में पैदा होते हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट और चालाक होते हैं। कौन लोग हैं मार्च वाले?
काफी लोग हैं मार्च वाले, ये देखिए साहब, ये काफी फ्रेंडली और हंसी मजाक वाले। अप्रैल, caring and kind, thank you madam, good, you are caring and kind। मे वाले लोग तो बहुत ही केयरफुल भीतर से खुश रहते हैं। मैडम सामने बैठी हुई खुश रहती है, साथ हस्बैंड भी उनके बोल रहे हैं खुश रहती है, तो सब कुछ बोल रहे हैं। ये देखिए जून वाले काफी लोग टॉकेटिव एंड सोशल होते हैं ऐसे मैडम, हैं ऐसे आप। जुलाई वाले सेंसिटिव एंड फॉरगिव, जाने दो जो हुआ। अगस्त वाले बॉडी एंड फन, इनके दोस्त अच्छे होते हैं। सितंबर वाले रोमांटिक रोमांटिक। दिसंबर वाले ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी। नवंबर वाले और टाइप कर दूं। नवंबर वाले चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव। नवंबर वाले चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव एंड दिसंबर वाले आप हैं साहब, आप भी हो, गुड। ये देखो ब्यूटीफुल, आप तो हो ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड। ये देखिए साहब, एक बार सांस लीजिए और आगे बढ़ते हैं। सांस लीजिए और छोड़िए। दोस्तों, एक हिंदी में कहते हैं जैसी करनी, अगला लाइन, अगला लाइन, जैसी करनी वैसी भरनी, अगला लाइन, ना माने तो करके देख। ये देखिए साहब, इसको देखिए, ना माने तो करके देख, है ना? जैसा करेंगे वैसा। ये देखिए साहब, ये देखिए, ये जैसी करनी वैसी भरनी। एक और है, स्वर्ग भी है, नर्क भी है, स्वर्ग भी है, नर्क भी है। अगला लाइन, क्या 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 क्या, ना हो तो मर के देख। दोस्तों, स्वर्ग भी है और हेवन है। अगर आपको मालूम हो कि स्वर्ग और नरक है, तो हूर को छोड़ करके अगर एक चीज आप अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो क्या लाएंगे? अगल बगल से शेयर करें। अगर अपने जिंदगी में ये स्वर्ग और नरक है और आपको विश्वास है कि है, तो एक चीज में क्या परिवर्तन आप करेंगे? सोचिए। जिंदगी में अक्सर लेडीज कहती हैं, दो तरीके हैं दुनिया में जीने के, एक मुझे नहीं आता और एक तुझे नहीं आता, और वो है प्यार। हर लेडीज का एक कंप्लेन होता है, तुझे प्यार करना आता ही नहीं, अगले जन्म में तेरे ऐसा पति चाहिए नहीं। हाँ मैडम, ऐसा ही है। ये देखिए, अंग्रेजी में इसे कहते हैं लव। इसका मतलब क्या होता है? LOVE। एल का मतलब प्यार और प्रेम। ये कहते हैं थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से लगता है। हाँ साहब, ऐसा होता है। अब का मतलब क्या हुआ?
एल का मतलब होता है लिसनिंग। अगर आप अपने बेटे से, पत्नी से, किसी से प्यार करते हैं तो उसकी बातें आप बहुत ध्यान से सुनते हैं। एल का मतलब होता है लिसनिंग। ओ का मतलब होता है ओवरलुक। कोई इस पृथ्वी पर परफेक्ट हस्बैंड पैदा नहीं लिया है, कोई परफेक्ट वाइफ नहीं, कुछ न कुछ कमी रहती है। कैन यू ओवरलुक इट। और वी का मतलब था वॉइस। ये देखिए, प्यार की 16 भाषाएं होती है। अगर आपका जन्मदिन है, हस्बैंड ने आपको गिफ्ट दिया है, तो ये भी प्यार की भाषा है। हस्बैंड ने अगर आपके अगल बगल लोगों से बोलते, जब से ये आई है मेरे माँ बाप इससे इतने खुश हैं, हमारे बच्चों का पूरा ध्यान रखती है, तो ये भी एक ढंग का गिफ्ट है। और अंत में है ई का मतलब इम्पैथी। इम्पैथी का मतलब एक सिंपैथी होता है, एक इम्पैथी। इम्पैथी का मतलब चोट लगे उनको तो दर्द मुझे हो। तो दोस्तों, ये है। ये बताइए, आप लोगों में से कितने को आइसक्रीम अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? चलिए, ये देखिए साहब, अगर आइसक्रीम दूं और बोलूं 2 घंटे के बाद खाना, फिर आइसक्रीम पिघल जाएगा साहब। और एक पदार्थ ऐसी है जो आदमी को रोज खाना चाहिए, वो है आइसक्रीम। आइसक्रीम का मतलब, आ का मतलब आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति, सकारात्मक सोच, क्रियाशीलता, और भा का मतलब महत्वाकांक्षा। ये अगर 5 चीज आप में है तो ये जिंदगी का आइसक्रीम है। दोस्तों, क्या है साहब, आप लोगों में से कितने को हुआ है एमआरआई? आप लोग का हुआ है। हमारे लिए, साइकोलॉजिस्ट के लिए, एमआरआई मस्ट रिफ्लेक्ट इंटरनली। अपने अंदर झांक करके देखिए, इस मशीन में नहीं, अपने अंदर झांक करके देखिए। अगल बगल में शेयर कीजिए कि आप अपना दिन कैसे बिताते हैं। अगल बगल में शेयर कीजिए, सर ऐसे बिताते हैं, हैं? सर जी, इसका सीडी आपको मिलेगा। अपना दिन का शुरुआत आप कैसे करते हैं, अगल बगल में शेयर कीजिए। ये बताइए कि बचपन में सबसे पसंदीदा खिलौना आपका क्या था? आपस में शेयर कीजिए। गुड़िया था, बॉल था, क्रिकेट था, क्या था? अगल बगल में शेयर कीजिए। याद ही नहीं है, ये बताइए। अगर आप जानवर होते तो कौन सा जानवर होना, और उसकी आवाज निकालिए तो बिल्ली का, किसी ने निकाला बिल्ली का? अच्छा, एक बार और मैडम। ये बताइए, आपके जिंदगी में ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन का मतलब हम लोगों ने कुछ और लिया है, जिसके बिना आप रह नहीं सकते। कौन सा चीज है आपके लिए ऑक्सीजन है? यस। और अगला प्रश्न, मेरा सबसे पसंदीदा जगह कौन सा है? स्विट्जरलैंड, हिंदुस्तान, अपना घर, माय हाउस। ओके, अब हमें ऑर्डर हो रहा है। एक 2 मिनट मैडम, लास्ट थोड़ा सा इनको लास्ट। अगर एक आदमी से हम लोगों ने पूछा कि जिंदगी में तुम्हें क्या चाहिए, IIM अहमदाबाद में, IIT दिल्ली में, उनका कहना था कि घर हो तो बिल गेट जैसा, गाड़ी हो तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जैसा, और रेपुटेशन हो तो अमिताभ बच्चन जैसा, और बीवी हो तो इनमें से कोई हो जाए।
और नौकरी हो तो इन दोनों में से कोई, और रुपया हो तो इन दोनों को एक साथ मिला दीजिए। सर, एक फास्ट और आगे। एक जो प्रोग्राम है एक्चुअली ये आपका वर्क लाइफ बैलेंस पर, तो एक चीज एक स्लाइड में दिखाना चाहूंगा। और वर्क लाइफ बैलेंस, एक संतुलित जिंदगी क्या है। पीछे आगे एक संतुलित जिंदगी का मतलब क्या है। फिजिकली एक्टिव हो, मेंटली अलर्ट हो, इंटेलेक्चुअली इंस्पायर्ड हो, स्पिरिचुअली अवेकेंड हो, इमोशनली बैलेंस्ड हो, मोरली स्ट्रेंथन हो और सोशली रेलेवेंट हो। दोस्तों, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तो हमारा नाम है डॉक्टर उमेश शर्मा। अगर कुछ पूछना हो तो ये मोबाइल और ये मेरा ईमेल एड्रेस है। थैंक यू सर। Thank you so much, Dr. Umesh. I hope it was very interesting session. Everyone enjoyed, right? Yes. I know everyone was expecting कि और थोड़ा लंबा खींचे, but it was not possible for us. So now I would like to request Ayurveda and Panchkarma expert Dr. Vinod Kumar Yadav ji on the dais, please. Please welcome him with a round of applause. आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं CGHS में जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत है उसमें एज अ CMO कार्यरत हूँ। और गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से मैंने पंचकर्म में MD करने के बाद भारत सरकार में सेवा दे रहा हूँ। अभी जो हम लोगों ने सुना तो ये साइकेट्रिस्ट थे तो लोगों को पागल किया, लेकिन मेरा काम है लोगों को स्वस्थ करना। तो आप लोग घबराइए नहीं, जो समस्याएं आई हैं उनका समाधान हम लोग कर सकते हैं। और आज शायद हम आपस में चर्चा करेंगे, एक तरफा ना हो के आपस में आप भी उस चर्चा में शामिल हो सकते हैं। कुछ सवाल हैं आपके, पूछ सकते हैं। आयुर्वेद जो है वास्तव में आयुषो वेदा आयुर्वेद, यानी कि आयु को जानने का जो वेद है, जो साइंस है, नॉलेज है, वही आयुर्वेद है। तो जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए, इवन की मुक्ति मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आयुर्वेद ये मानता है आपको तपस्या करने की जरूरत नहीं है। केवल आप इन चारों पुरुषार्थों को अपनी संजीदगी से अगर जीवन में जीते हैं तो मुक्ति स्वतः प्रकृति में हो जाती है। और मोक्ष जीवन जीने के लिए क्या होता है कि हम बचपन जीते हैं, जवान होते हैं, लेकिन तब तक हमें जीवन का मूल उद्देश्य समझ में नहीं आता है कि जीवन है क्यों हम आए संसार में। तो ये संसार में जब हमें समझ में आता है तो हमारी आयु हो जाती है, हम वृद्ध हो जाते हैं, शरीर जर्जर होने लगता है। ऐसी अवस्था में पुनर्युवन यानी पुनः आपको शक्तिशाली बनाए रखने के लिए आयुर्वेद में पंचकर्म जैसी विधा का हमारे 8 ऋषि मुनियों ने विकसित किया और यह धरोहर हमें दी। उसी विद्या का जानकार मैं हूँ। इस पंचकर्म का क्या है, कैसा है और कैसे आप सब अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य के परिरक्षण के लिए उपयोग कर सकते हैं
और मेरी भी सेवाएं आपको कैसे मिल सकती हैं और आप उत्कृष्ट जीवन कैसे जी सकते हैं। मानवीय संवेदनाओं को जीते हुए अपने स्वस्थ की चरमोत्कर्ष पे पहुंचकर आप मुक्ति को हो जाएं, मोक्ष को हो जाएं, परम पिता परमेश्वर में लीन हो जाएं। यही जीवन का उद्देश्य है। बाकी जो कुछ भी हम करते हैं वो हमारे इस सांसारिक व्यापार को चलाने का एक साधन है, लेकिन हमारी अंतिम जो इच्छा है, हम सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी हमें लगता है कि जैसे कुछ अभी बाकी है, कुछ रह गया है। वो क्या रह गया है? वो पाने का मूल आपका स्वास्थ्य पे निर्भर है। यदि आप स्वस्थ हैं तो जीवन में सभी सुखों को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग जो पंचकर्म कराते हैं वो स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। आयुर्वेद ये मानता है कि यदि हमारी समाज स्वस्थ रहे, बीमार ही ना आपको होने दिया जाए तो कितना अच्छा हो, लेकिन यदि बीमार हो जाएं तो आपको स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद पूर्ण रूप से सक्षम है। और आप आश्चर्य करेंगे कि जो इसकी औषधियां हैं वो प्रकृति से ली गई हैं। प्रकृति में ही समस्त हमारी समस्याओं का निदान है। यदि उनका हम उपयोग करें तो हमें कभी भी स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफें नहीं होंगी और शतायु पूर्ण 100 वर्ष की आयु सुखपूर्ण रूप से हम बिता सकते हैं। तो जीवन में दैनिकचर्या में, जैसे इस समय बरसात का मौसम काफ़ी इस बार विकृत है, तो ऋतुचर्या और दिनचर्या दो चीज़ें सबसे हमारी प्रभावित करती है कि आपका दिन, जैसे इसे पूर्व वक्ता ने भी कहा कि दिन कैसा हो आपका। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से लेके सायंकालीन तक आपकी दिनचर्या कैसी हो, उसका पूरा विवरण आयुर्वेद में दिया। इसके बाद उन्होंने कहा केवल दिनचर्या ही नहीं, ऋतुचर्या कैसी हो, यानी एक मौसम में आपका जीवन कैसा होना चाहिए, कितना प्रकृति के साथ लयात्मक आप जी सकते हैं, उतने ही आप स्वस्थ रह सकते हैं। इसके बाद पंचकर्म का जहाँ है कि अगर आप बीमार हो गए तो शोधन की बात आती है। शोधन में देखिए पंचकर्म में 5 प्रोसेस होते हैं, 5 प्रक्रियाएं जिनके द्वारा हम शरीर से आपके टॉक्सिन्स को बाहर निकाल लेते हैं और पूर्ण रूप से तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं आप। क्योंकि इससे पहले काफ़ी तनाव था इसके कारण, और वो हंस हंस के डॉक्टर साहब ने तनाव काफ़ी कम किया। तो उसमें सबसे पहले है वमन क्रिया आती है। इसमें क्या, नाभि से ऊपर के जितने भी आपके दोष हैं उन्हें हम वमन के द्वारा बाहर निकाल लेते हैं या उल्टी कराते हैं। इसके बाद आप विरेचन क्रिया होती है, यानी नाभि से नीचे के जितने भी दोष हैं उन्हें हम शोधन के द्वारा विरेचन के मार्ग से मल मार्ग द्वारा निकाल देते हैं। ये 2 प्रक्रियाएं इतनी अच्छी हैं कि लगभग 20-25 दिन में आपका 5 से 6 किलो वजन बिल्कुल घट जाएगा। इमीडिएटली चेहरे पे चमक आ जाएगी और शरीर स्फूर्तिवान और युवा ऊर्जा से भर जाएगा। उसके बाद आता है हमारा नस्य कर्म। जो स्ट्रेस, तनाव, टेंशन की हमने चर्चा की वो ज़्यादातर मस्तिष्क में हो रहा है, तो उसमें हम नस्य कर्म कराते हैं। नस्य कर्म कुछ नहीं है, सिंपल कुछ औषधीय सिद्ध तेल हैं, उनका प्रयोग हम नाक में करते हैं। प्राचीन परंपरा से हमारे घरों में हमारे माता पिता इसका उपयोग कराते रहे हैं। अब नए संस्कारों में थोड़ा हमने उनकी उपेक्षा की है, लेकिन ये नस्य कर्म इतना अच्छा, आपको नींद नहीं आ रही है, आपको तनाव है, सांस संबंधी दिक्कतें हैं, सांस लेने में तकलीफ है, आपके चेहरे पे झाइयाँ हैं, ठीक है, सौंदर्य के लिए, चमक के लिए, सब के लिए नस्य कर्म आपका इतना अच्छा है। मस्तिष्क से संबंधित जितने रोग हैं उन सब में नस्य कर्म का उपयोग हम लोग कराते हैं। इसी के साथ एक ऐसा बिना औषध, बिना दवाई के एक प्रयोग है, वो है शिरोधारा का भी हम लोग प्रयोग कराते हैं। यदि आपको नींद नहीं आ रही है, तनाव है, चिड़चिड़ा रहे हैं, बीपी है, आप कुछ मत करिए, औषधीय सिद्ध तेलों का हम प्रयोग करते हैं और उनका ब्रह्मरंध्र में सिर में हम डालते हैं, जिससे कि आपको तुरंत, कई पेशेंट टेबल पे ही सो जाते हैं, तो इस विधा का भी हम उपयोग करते हैं। और इसके अलावा पूरे आयुर्वेद में आदि चिकित्सा एक तरफ, आदि चिकित्सा एक तरफ, वो है बस्ती चिकित्सा। बस्ती चिकित्सा भी इतनी सुंदर चिकित्सा है कि जिसमें औषधीय द्रव्यों का क्वाथ, काढ़ा वगैरह बना के हम उसका उपयोग करते हैं और मल मार्ग द्वारा उसे शरीर में चढ़ाते। कोई भी व्याधि हो,
जैसे पेड़ की जड़ में हम पानी डालते हैं, ठीक उसी तरह हमारा शरीर मूल की चिकित्सा हो जाने से हम स्वस्थ हो जाए। चाहे पैरालिसिस के पेशेंट हो, किसी भी तरीके की समस्या हो, क्रोनिक गृहिणी अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट हो, सब में बस्ती चिकित्सा एक रामबाण काम करती है। इवन कि वेट घटाना हो या वेट बढ़ाना हो, दोनों ही अवस्थाओं में बस्ती चिकित्सा का हम लोग उपयोग करते हैं। इसके बाद आता है आपका रक्त मोक्षण, यानी कि जो रक्त से संबंधित समस्याएं हैं, जिनमें हमारी कई सारे रोग होते हैं, उनमें हम ब्लड लेटिंग करा के बहुत जल्दी ही आपको त्वचा से संबंधी रोगों में आपको लाभ देते हैं। तो आयुर्वेद जो आयु को जानने का ज्ञान है, उसमें ये उसका प्रायोगिक पक्ष है, यानी चिकित्सकीय पक्ष, जो आप सब इसका इस्तेमाल करें, लाभ लें। किसी की भी कैसी भी समस्या हो, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और मैं बिना किसी उसके आप सबकी मदद करना चाहता हूं। मेरी सोच है, जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे राष्ट्र को स्वस्थ और समाज को स्वस्थ रखना चाहते हैं और देश को एक नई ऊंचाइयों पे ले जाना चाहते हैं, ताकि हम एक विश्व गुरु की भूमिका में अपने आप को प्रतिस्थापित करें, तो बिना स्वास्थ्य के आप और हम ये नहीं अचीव कर सकते हैं। इसलिए ये हम सबका दायित्व है कि पहले हम अपने आप को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रखें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, समाज को स्वस्थ रखें, तभी हम इस समाज को, अपने देश को, अपने राष्ट्र को महान बना सकते हैं। इसी के साथ आपने मुझे धैर्य से सुना। हाँ, आपके कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, मैं यथासंभव आपकी समस्याओं का निदान करना चाहूँगा। बताएं सर। 3-4 जी, जी। क्वेश्चन है, एक एक करके पूछ लें। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहला सवाल तो ब्रह्म मुहूर्त जो है वो समय क्या है? देखिए, ब्रह्म मुहूर्त ज़्यादातर, वैसे मैं आप आयुर्वेद पक्ष में बता दूं, उस तरह से नहीं है। इसके निर्णय लेने में आपको स्वास्थ्य का संबंध रहना पड़ेगा। वैसे तो 4:30, 4 से 5:30 सूर्योदय से आधे घंटे पहले तक ब्रह्म मुहूर्त लग जाता है, लेकिन आयुर्वेद कहता है रात्रि में किया हुआ भोजन जब आपका पच जाए, ठीक है, और इंद्रियों में प्रसन्नता हो और प्रसन्नता से आपकी निद्रा टूट जाए, ठीक है, आलस्य ना रहे, तो आपको उठ जाना चाहिए। यही आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त का उत्तम अवस्था है। लेकिन आप रात्रि 12 बजे सोए हैं, आपका रात का खाना नहीं पचा हुआ है, तो आपको उठने की ज़रूरत नहीं है। आप सोए रहें, जब आपका आहार पच जाए उसके बाद ही आप उठें। यस, ये आप जान लीजिए, जो भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव किया होगा, उन्होंने ये देखा होगा कि जो भी स्वस्थ लोग हैं और समय पे निद्रा आती है और लघु सुपाच्य आहार अगर रात्रि भोजन लिया हो, तो आपका ठीक 4 बजे के आसपास प्लस माइनस में अपने आप निद्रा खुल जाएगी। देखिए, CGHS में एक ही आपका हॉस्पिटल है, लोधी रोड अलीगंज में है, जो 25 बेडेड हॉस्पिटल है भारत सरकार का, और वहाँ देश के बेहतरीन डॉक्टर उपस्थित हैं और CGHS के लोग जो हैं उनको पूर्ण रूप से वहाँ सेवा मिल सकती है। सर, ये जी जी, पंचकर्मा कहाँ तक उपयुक्त है और कौन सी प्रक्रिया करना चाहिए? हाँ बिल्कुल। देखिए, जो पंचकर्मा है वो उसका एक सिद्धांत है। हाँ, मैं समझ गया, आम बात आपका समझ गया। हाँ, आम बात समझ गया। देखिए, आपको एक बात मैं यकीन से दिला दूं, मेरे करीब 16-17 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। ऐसी कोई व्याधि नहीं है जिस पे आयुर्वेद काम नहीं कर पाता। यदि वो नहीं कर पा रहा है तो वैद्यों की कमी हो सकती है, शास्त्र में कहीं कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो हमें लगातार अनुसंधान करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। जहां तक आम बात की चर्चा की, आप देखिए कितना सुंदर है। आम बात में जोड़ों में तकलीफ आती है, लेकिन उसकी मूल जड़ आपके पेट में है। जो भी आम बात का पेशेंट होगा, सबके पेट, पाचन, डाइजेशन, लिवर में दिक्कत होगी, और वहां से वह आम दोष जो हो जाता है वो तैयार होता है पाचन के समय। वो जहरीला पदार्थ जब रक्त के साथ अवशोषित होकर शरीर में व्याप्त होता है, तो जोड़ों में जाके धीरे धीरे ये टॉक्सिन्स इकट्ठा होते हैं और एक तरीके की सूजन
को उत्पन्न करते हैं। तो आयुर्वेद से हम इस सूजन को खत्म कर सकते हैं। एक और विशेष बात है, कई बार देखा होगा आप लोग कराते रहते हैं, इसमें इलाज नहीं आ रहा, मतलब एक बुखार आता है इसमें खास प्रकार का, वो बुखार टूटने में कई बार 3-4 महीने 6 महीने तक लग जाते हैं, तो वो इसी आयुर्वेद से वो टूटता है और ठीक होता है। जैसे और भी विधियों पद्धतियों से हम बुखार तोड़ते हैं, लेकिन उसमें ज्वर का पाचन नहीं होता है। जब ज्वर का पाचन हो जाएगा, अग्नि आपकी ठीक हो जाएगी, तो वास्तव में आपको धीरे धीरे सूजन कम हो जाएगी। और एक विशेश बात है, रसायन औषधियों का प्रयोग करके आप गंभीर से गंभीर रोग को भी जड़ से समाप्त कर सकते हैं। तो पंचकर्म शोधन के उपरांत जब हमारा यंत्र ये शोधित हो गया, स्वस्थ हो गया, तो हम रसायन औषधियों का हमारे यहाँ आयुर्वेद में बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है, और उसका हम उपयोग करके जड़ से हम इसको खत्म कर सकते हैं। सर ये हाँ कि आपने जो बात बताई वमन, विरेचन जी और बाकी 3 जी जी इसमें से कुछ प्रक्रिया करने से वो रिमेटोलॉजी ठीक हो जाएंगी? नहीं, स्पेसिफिकली कोई देखिए स्पेसिफिकली तो सबसे पहले उसका पाचन कराना पड़ेगा, और उसके बाद कंडीशन पे देखना पड़ेगा कि अगर मान लो कफ दोष की बाहुल्यता है, ठीक है, ये वैद्य को ऊपर निर्णय करना पड़ता है। अगर कफ दोष की बाहुल्यता है तो वमन करा सकते हैं हम, नहीं तो विरेचन करा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि विरेचन का और संधियों का संबंध है, क्योंकि आमाशय में जो आंतर्गत कला है उसका संबंध हमारे इससे है, तो हम विरेचन का प्रयोग, बस्ती चिकित्सा का भी उपयोग कराते हैं। इसलिए इसमें वैद्य की देखरेख में उसके चिंतन का विषय है, ठीक है, कौन सा दोष किस जगह पे है वो निर्णय लेना पड़ता है। सर ये रक्त मोक्षण क्या होता है? रक्त मोक्षण देखिए इसमें एक ये देखिए हमारा जो सिस्टम है उसमें ब्लड चल रहा है, तो ब्लड में क्या होता है कि मान लीजिए आपको स्किन डिजीज यहाँ है, ठीक है, कोई पैच है, आपको खुजली हो रही लगातार, तो हम क्या करते हैं कि इस स्थानिक दोष को शुद्ध करने के लिए यहीं का दूषित रक्त निकाल लेते हैं। इसमें हम जलौका, अलाबू, इस तरह अन्य चीज़ों का उपयोग करते हैं, जिसमें जलौका या लीच थेरेपी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका खासियत ये है कि ये उस स्थानिक जगह से दूषित रक्त को पहले निकाल देती है। जब स्वस्थ रक्त आता है तो उसके रक्त दुष्टि कम हो जाने की वजह से वहाँ हीलिंग अच्छी होती है, तो हमको इतनी दवाई नहीं खानी पड़ती है। और कोई प्रश्न? हाँ सर, कोई हॉस्पिटल, ये कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप मेरा नाम भी आप डालेंगे यूट्यूब पे मिल जाएगा, लगभग सभी राष्ट्रीय चैनलों पे मैं होता हूँ, ठीक है, तो डॉक्टर विनोद कुमार यादव या डॉक्टर वीके यादव करके आप डालेंगे तो मेरा सब संपर्क आपको मिल जाएगा। और मेरा ये सपना ही है कि हम फिर से आयुर्वेद से अपने भारत देश को स्वस्थ करें। और प्राचीन काल से घर घर में आपके माता पिता, दादा दादी सब लोग इस विधा का इस्तेमाल करते थे। जब से पाश्चात्य संस्कृति आई और इसने हमारे जीवन को बिल्कुल बदल दिया, इसकी वजह से हमने एक हमारे अंदर अपनी ही चीज़ों के प्रति हीनता महसूस होने लगी और हमने उनका उपयोग करना बंद कर दिया। पर अगर हम पुनः इस चीज़ को लाएं वापस और अपनी जीवन शैली को वापस कर, देखिए आयुर्वेद कुछ भी नहीं है, प्रकृति के सिद्धांतों के ऊपर इस चिकित्सा को लिखा गया है। तो प्रकृति में हम समाहित हैं, तो हमारा जीवन उत्कृष्ट तभी होगा जब हम प्रकृति के साथ लयात्मक संबंध रखेंगे। इसलिए प्रकृति में जिए, प्रकृति के हर नियम को पालन करें। स्वास्थ्य आपको कुदरत ने दिया, आपको स्वस्थ पैदा किया, बीमार थोड़ी पैदा किया। बीमार तो हम अपनी गलतियों से हो रहे हैं, गलतियों को कहाँ सुधारना है। अब बहुत लोग ऑफिस में जो काम करते हैं बोले हमारे पास टाइम ही नहीं है। अरे भाई, तो टाइम नहीं है तो आप जाना कहाँ चाहते हैं? क्या जल्दी जल्दी मरना चाहते हैं क्या? आप जो जीवन का सुख है वो तो बीच में ही एंजॉय करेंगे, बीच में ही उसको पाएंगे। उसी टाइम आपके पास समय नहीं है, न खाने का समय है, न जीने का समय है, न संबंधों को मिलने का समय है, न संबंध बनाने का समय है, न एक दूसरे से। मृत्यु जब हो जाती है तो आदमी दौड़ता है, भागता है और रोता है। अरे भाई, जो मर गया उसके लिए क्या रोने की आवश्यकता है? मृत्यु तो हर क्षण हो रही है। सीरियते हिनस्ति इति आत्मानम शरीरनम, जो हर क्षण नष्ट हो रहा है वह शरीर है। तो इतना दिव्य शरीर मिला है मानव चेतना को समझने के लिए। यह समय व्यर्थ ना गंवाएं और इसको महसूस करें और अपने संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करें और आयुर्वेद का उपयोग करें। इसी से हमारे देश, हमारी समाज,
हमारे किसानों को लाभ होगा। और आहार की व्यवस्था, देखिए आहार की कितनी इम्पोर्टेंस उन्होंने बताई आचार्यों ने। आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, 3 त्रय उपस्तंभ बताए जिस पे शरीर टिका हुआ है। यानी आहार सबसे बेसिक और सबसे महत्वपूर्ण है। आज हमारा आहार कहाँ जा रहा है? तो हमें सबको मिलके अपने आहार को समझना पड़ेगा। जो खेतों में अन्न उत्पन्न हो रहा है उतना टॉक्सिक आ रहा है, इतना उनमें केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं, हम स्वस्थ रहेंगे कहाँ से? तो हम सबको जो हमारे देश का सपना है उसको पूरा करने के लिए हमें दोबारा अपने गाँव की ओर लौटना चाहिए, अपनी चीज़ों को पुनरुत्थान करना चाहिए और फिर से आयुर्वेद को पुनर्जीवित करके उसका लाभ लेना चाहिए। और मैं आपको यकीन दिला दूं, इतने अध्ययन के बाद आयुर्वेद पूर्ण रूप से आपको स्वस्थ रखने में सक्षम है। इसमें कोई भी किसी को संशय है तो वो मुझसे निराकरण करा सकता है। हाँ, लिख लीजिए 8586978046। यदि कोई मान लो मुझ तक नहीं पहुंच पाता है, आप व्हाट्सएप भी करेंगे मुझे, तो मैं आपके स्थान पे ही आपको सलाह दे दूंगा ताकि आप वहीं अपने आसपास कोई भी औषध लेके अपने स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं, रख सकते हैं। धन्यवाद। चलिए, एक सवाल है उस बच्चे का, वो पूछिए बेटा। बेटा देखो, हमारा सिस्टम ना, प्रकृति ने, कुदरत ने एक ऐसा यंत्र बनाया, यत पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, यत्र ब्रह्मांडे तत् पिंडे। यानी जो ब्रह्मांड में है वह इस पिंड में है, जो इस पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। मतलब अगर आपको भूख लगी है तो खाने की इच्छा उत्पन्न होती है, प्यास लगी है तो पानी पीने की इच्छा उत्पन्न होती है। उसी तरह सम्यक निद्रा किसी टाइम फ्रेम में नहीं हो सकती है। योगी 1 घंटा सो के भी स्वस्थ हो जाता है, ठीक है, और कोई दिन भर सोता है, रात भर सोता है, सोता ही रहता है, तब भी वो स्वस्थ नहीं रहता है। इसलिए आपका अपना शरीर, जब आपकी चेतना पूर्ण हो जाए, आपको ऊर्जा महसूस होने लगे, आपको आनंद लगे, सोने की इच्छा दोबारा ना हो, तो आप उठ जाइए, ठीक है। फिर भी कम से कम 7 से 8 घंटे एक विद्यार्थी को सोना चाहिए। पर ये आपकी आवश्यकता, आपके एग्जाम है, आपको लगता है 3 घंटे सोने से मैं अपने लक्ष्य को हासिल कर लूंगा, तो आप 3 घंटे सो के अपने लक्ष्य को हासिल करिए। उसके बाद पुनः प्रकृति में आइए और अपने जीवन को सही से सहमित करिए, ठीक। Thank you so much, sir. Now we are going to have a 15 minutes tea break, and after that we'll join again by 11:15. And please take care of your belongings.